who taught the world the lesson of non-violence. It is Mahatma Gandhi, the father of the nation. Yes, all over the country, October 2nd is celebrated as Gandhi Jayanti, remembering the father of the nation on his birthday and his valuable contribution to the independence movement in 1947. Today, the father of the nation would have turned 152 years old. Today, on his birthday, let us remember him and celebrate this day with joy and prosperity. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, which is situated in Gujarat. He played an extremely important role in helping attain the freedom from British rule. With other freedom fighters indulged in violent agitation to attain the same purpose, Gandhi went about the peaceful way which he felt would be more effective. He strongly practiced ahimsa, which means non-violence. This was a breath of fresh air in the rising tension between Indian masses and its British rulers. He was affectionately called Bapu by the people. His peaceful approach towards achieving the same goal became extremely popular so much. So it eventually gave more impetus to the independence movement. Gandhiji, being such a great leader, preferred to wear khadi clothes. He never accepted British culture and always followed the old traditional culture of India. Gandhiji spent a major part of his life to get freedom for our country. He has led many important movements such as civil disobedience movement, non-cooperation movement, and Quit India movement. Even today, Gandhiji is remembered for his valuable contribution towards helping Indians gain their independence. His various principles are practiced not just in our country, but all around the world as well. His life was an inspiration for all of us, and the sacrifices he made are our responsibilities now. Let us contribute ourselves to the growth of our country to pay a salute to nation's father.
Happy Gandhi Day. Thank you. आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने हम यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हमारी प्रधानाचार्या श्रीमती उर्मिला बर्वे, सुविधा देसाई जी, श्रीमती नीता नाइक जी, दया देसाई, यहाँ उपस्थित मेरे सहकारी शिक्षक, पालक, ऑफिस कर्मचारी और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आज मैं भारत के एक महान सपूत हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर 2 शब्द सुनाना जा रहा हूं। जनमानस में हुआ तिरंगी का हूर, जनमानस में हुआ तरंगित जननी का हूर। लाल बहुत है किंतु एक है लाल बहादुर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की इन पंक्तियों के साथ मैं युवराज कारी शास्त्री जी को नमन करता हूं। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय की धरती पर एक लाल अवतरित हुआ। ऐसा पुत्र रत्न को पाकर मां राम दुलारी खूब खुश थी। पिता श्री शारदा प्रसाद को प्रसन्न थे। लाल बहादुर के पिता बचपन में ही चले गए। इन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला। मां के स्नेही छाव में इनका लालन पालन हुआ। 1911 ईस्वी सन में राजनीतिक आंधी उठी। गांधी जी ने क्रांति छेड़ी। शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ दिया, जेल गए। जेल से मुक्त होने पर उन्होंने काशी विद्यापीठ में नामांकन कराया। वहां उन्हें आचार्य कृपलानी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर भगवान दास, श्री प्रकाश जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिला, जिससे जीवन ज्योति जगी। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए, मंत्री भी बने। नेहरू जी ने इन पर कांग्रेस के संगठन का भार सौंपा। वे कर्तव्य पालन में खरे उतरे। 1952 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शास्त्री जी संचार एवं परिवहन मंत्री बनाए गए। सामान्य जनता के लिए शास्त्री जी ने जनता रेलगाड़ी चलाई। रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। है कोई मिसाल इस त्याग का, है किसी में इतना नैतिक साहस। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। किसानों ने आर्थिक मोर्चा संभाला। बीच बचाव से युद्ध स्थगित हुआ। Respected headmistress of this institution, senior most teacher, Dara teacher, teachers and my dear students. First of all, I would like to thank the organizing committee in charge for giving me this opportunity to stand before you and to speak few words on this special occasion. Lal Bahadur Shastri and Mahatma Gandhi were the biggest and great Indian patriots who fought the movement for freedom. Shastri was known for his honesty, simplicity and integrity. Truth and ahimsa were the guiding principles of Gandhi's life. What I would like to say is, a speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values, honesty, but we as the citizen of our country can honor them by living our life with their principles. And Gandhi's principles, truth,
peace and non-violence, and lead our country to an incredible nation. Today on this auspicious occasion, I would like to end my speech with Swachhata Pledge. राजू, मैं सभी से दरखास्त करती हूँ कि सब शपथ के लिए खड़े हो जाइए। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यहाँ मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही करने देते हैं। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वहाँ अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ में गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। थैंक यू। आदरणीय दोनों नेता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने आज हम इकट्ठा हुए हैं। हर उस संस्था में जहां ज्ञान दान होता है, विद्यापीठ में इन दोनों की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों से हम सबको प्रेरित किया है और शास्त्री जी के काम ने हमें प्रोत्साहित किया है। अहिंसा परमो धर्मा, इस वाक्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अपने नाम का डंका बजाया
वो हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के निग्रो लोगों के साथ काम करते हुए उनके साथ अपना मार्गदर्शन देते हुए उनकी लड़ाई लड़ी, और जब भारत में आए तो अपने पोशाक त्याग देते हुए खादी धोती और खादी उपकरण ये पहनते हुए जो निकला वो पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का महात्मा बन गया। उनके इस कदम पे अपना मार्गदर्शन देते हुए शास्त्री जी भी इस राह में चल पड़े। उन्होंने भी अहिंसा और जो मांसाहार है वो त्याग दिया। ये दोनों नेता, उनके घर में मांसाहार होता था, लेकिन दोनों नेताओं ने मांस मच्छी को खाना बंद कर दिया। महात्मा गांधी बनिया करके थे। एक गोवा में हमने वाणी थे, वैश्यवाणी, और जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो केवट थे। उनके घर में उनके मामा जी मांस पकाते थे, लेकिन जब उन्होंने मांस पकते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आज से मांसाहार नहीं करूंगा। उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। एक बकरे को काटते हुए देखा था घर में, तो उसके मामा जी कट कर रहे थे और उसको बाद में पकाते थे उसके मामी। तो उन्होंने कहा आज से मैं ये नहीं लूंगा, मैं शुद्ध शाकाहारी बन जाऊंगा। इन दोनों नेताओं ने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को अहिंसा का मार्ग दिखाया। छोटी सी मूर्त, लेकिन इनके इरादे बुलंद थे। शास्त्री जी बुलंद इरादे लेके ये हमारे प्रधानमंत्री बन गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसान को सबलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हमारे किसान हमारे अन्नदाता है। स्वच्छता एक दिन की नहीं, वो पूरे साल होनी चाहिए।
जाएंगे।